Assalamualaikum dear listeners, how are you? I hope you're doing well at your home. So now with a new video that is called लिखा हुआ तो नहीं है. Now I'm going to write past continuous tense in past voice. Fine. Okay, what is it? Past continuous in passive voice. Past continuous in passive voice हमारे पास है. लेकिन before learning this topic, if you are new in our channel, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो kindly don't forget to subscribe my channel Instruct by Mind. मेरे चैनल Instruct by Mind को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड इफ़ यू फील दैट एक्चुअली माई वीडियो इज़ फ्रूटफुल फॉर यू पीपल, अगर आपको लगे कि भाई मेरी वीडियो जो है आपके फ़ायदेमंद है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट अस. थैंक यू. नाउ कम टू द पॉइंट. हियर इज we got sound that is called here we have got रहा था, रही थी, रहे थे. that is called continuous. but when we talk about passive, जब हम passive की बात करते हैं so we have to add what we have to add जा. in उर्दू में हम क्या करेंगे? जा लफ्ज़ का इजाफा करेंगे. जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे and जा रही थी. so this is because of the passive we have included ja. Fine. Now come to the point that this is called sounds. This was all about sound. and now we got the helping verb. helping verb क्या है हमारे पास? we got the two helping verbs. what are those? was, being. was being हमारे पास क्या है कि was being helping verb होगा. was being के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? was being text I, he, she, it and singular name. was being के साथ क्या लगेगा? he, she, singular name लगेगा. and now here is verb being. what is it? it's called verb being. verb being के साथ क्या आता है? we, you, they, pn and plural noun. Fine. Here it is. And now we need to write the formula. The formula says in the starting, what is it? the formula? and the starting we have to put object. starting में सबसे पहले हमें object put करना पड़ेगा. after object we need to write helping verbs. अब हमें क्या करना पड़ेगा कि object put किया, उसके बाद helping verbs यूज़ करने पड़ेंगे. was being और verb being. and then we have to use third form of the verb. और फिर verb की third form यूज़ की जाएगी. later on the form you have to use by. after by you are gonna use your case. आप verb की third form यूज़ करने के बाद क्या करते हैं कि by का यूज़ करते हैं. by का यूज़ करने के बाद you use case. fine. here is a sentence. she is नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो was आएगा. she was milking the cow. वो गाय का दूध निकाल रही थी. she was milking the cow. अब जब इसकी हम passive voice बनाएंगे, how to make the passive voice? you are going to make it. क्या निकाल रही थी? दूध. किसका निकाल रही थी? गाय का. तो हम क्या यूज़ करेंगे? the cow. got it? ये सिंगुलर हो गया. the cow was being. अब ये the cow सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हमने was being यूज़ कर लिया ना. milked by. अच्छा, milked भी आ गया, उसके बाद by भी आ गया. and now what's remaining? she.
जाएगा हर के अंदर. Got it? Now we got the next sentence, that is yes, you were digging the ditch for your dog. आप क्या कर रहे थे कि खड्डा खोद रहे थे. किसके लिए खोद रहे थे? You were digging a ditch for your dog. अपने डॉग के लिए आप खरीद रहे थे. फाइन. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? पेशवेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो लफ्ज़ है द डिच, इट हैज़ टू कम इन द स्टार्टिंग. जैसे कि है द डिच आ गया हमारे पास. अब हम क्या करें? द डिच वॉज बीइंग, डिग की थर्ड फॉर्म होती है डग, फॉर योर डॉग by you. Fine. This was simply the question. That see the another example, like her man, here's a sentence, her man and Herman and Ansel were closing the shop at 9 PM. अब क्या कर रही थी? हरमैन और अंजल दुकान बंद कर रही थी. कब कर रही थी? 9 PM, रात 9 बजे. फाइन. अब इसको पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वी नीड दी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? बंद करना. क्या बंद कर रही थी? द शॉप. द शॉप हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. द शॉप वॉज बीइंग. एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें बेटा कि हरमैन और अंजल ये प्लूरल हो गया. कहीं आप ऐसे नहीं सोचेंगे प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हम वर यूज़ करेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप. अब ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, तो इसी वजह से मैंने क्या यूज़ करना है? इस ऑब्जेक्ट को देकर मैंने वॉज बीइंग यूज़ करना है. फाइन. यू हैव टू यूज़ वॉज बीइंग बिकॉज ऑफ द सिंगुलर नाउन दैट्स कॉल्ड शॉप. After this, we have to use close is as the third form. The shop was being closed at 9 PM. At 9 PM by Herman and Ansel. Fine. That was that. And now take another example. Here is they were writing vermicelli. They were writing a word. They were writing a word vermicelli. अब वो क्या कर रहे थे कि वर्मिसिली वर्ड लिख रहे थे. वर्मिसिली लफ्ज़ की मीनिंग होती है सवैयाँ. सवैयाँ होती है फिर मीठी हो या खट्टी हो. फाइन.
Here is vermicelli. अब क्या है, vermicelli was being written by दे है तो दे का केस हमारे पास क्या होता है, दे चेंज इनटू द देम। लेकिन एक ज़रूरी बात, अब यहाँ में देखिए मैंने सिर्फ वर्मिसली लिखा है, तो ऐसे नहीं होता। गॉट इट। यहाँ में क्या, अब वर्ड वर्मिसली है, तो यहाँ पर भी आप स्टार्टिंग में यही लिखेंगे कि अ वर्ड वर्मिसली। गॉट इट। देन आपका सेंटेंस कंप्लीट कहलाएगा। देयर मस्ट बी फुल स्टॉप। दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूस इन पास्ट वॉइस। लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे, एक्सरसाइज पार्ट, that how to change the sentences like that. Here is past continuous in past voice. अब इसका exercise है हमारे पास. Now we need to do the exercise. One exercise, in the exercise the sentence number 1 is the cat was drinking water while in swimming. अब यहाँ में क्या है कि वो स्विमिंग भी कर रही थी, स्विमिंग करने के साथ साथ क्या कर रही थी कि वह पानी भी पी रही थी। फाइन। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या पी रही थी, पानी। द वाटर वॉज बीइंग ड्रंक इन स्विमिंग बाय शी का केस क्या हो जाता है हमारे पास, हर। फाइन। now do the next sentence like the lion was trying to jump over deer. अब लायन क्या कर रहा था कि हिरनी पर छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। इसकी पैसिव किस तरह से बनाएंगे, ट्राइंग क्या कर रहा था, जंप लगाने, किस पर, डियर पर। अ डियर was being tried to jump। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने ट्राइंग लिखा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया, यहाँ पे टू है, तो इस टू को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। इस टू को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाए। तो ये देखें टू है, फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी टू है, फर्स्ट फॉर्म है। फाइन। वी कैन नॉट, व्हेन टू कम्स वी कैन नॉट चेंज द टू। फाइन। टू के बाद जो वर्ब आएगा उसे हम चेंज नहीं करेंगे। जंप ओवर बाय द लाइन। दिस वाज सेंटेंस नंबर 2। नाउ सी द थर्ड नंबर सेंटेंस। Abira was baking. Abira was baking pizza अबीरा क्या कर रही थी कि पिज़्ज़ा बना रही थी for her friends।
अबीरा क्या कर रही थी, अपने दोस्तों के लिए पिज़्ज़ा बना रही थी। फाइन, अब इसका पैसे बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, पिज़्ज़ा was being baked for her friends by अबीरा। लेकिन इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि वो बना रही थी, क्या बना रही थी, पिज़्ज़ा। चलो ठीक है, किसके लिए बना रही थी, अपने हर फ्रेंड्स के लिए। तो हर फ्रेंड्स पे भी आप आगे ले आ सकते हैं, हर फ्रेंड्स were being baked a pizza for by अबीरा। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, बिकॉज हमारे दोनों टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, दोनों का मफहूम भी सेम निकल रहा है, तो यू कैन डू इट। देन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, he was reading the research article। he was reading the research article, वो पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था। तो हम रिसर्च आर्टिकल को आगे ले लेंगे, द रिसर्च आर्टिकल was being, रिसर्च आर्टिकल एक सिंगुलर है तो इस वजह से हमने क्या यूज़ किया, was being यूज़ किया। अभी ऐसे नहीं कि रिसर्च आ गया, आर्टिकल आ गया, दो लफ्ज़ आ गए तो ये प्लूरल हो गया, नहीं। प्लूरल के लिए लाजमी होता है कि अब बीच में कंजक्शन होना चाहिए एंड वाला, ठीक। तो यहाँ में क्या गया, द रिसर्च आर्टिकल was being read by ही है तो ही क्या कैसे हमारे पास क्या होता है, him। Got it? After this number 5 में हमारे पास ये होता है कि you were होगा, you were riding a horse in the race। You were riding a horse in the race। आप क्या कहते हैं कि रेस के अंदर हॉर्स को चला रहे थे। इसकी पैसिव किस तरह से होगी, चला रहे थे, क्या चला रहे थे, हॉर्स। तो इसको हम आगे लेकर आएंगे, अ हॉर्स was being, राइड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ridden। in the horse in the race by you। This was the last question and it has been finished now. If you feel that it's beneficial for you, don't subscribe then my channel and like my videos. Thank you for watching this. Allah Hafiz.